Early blight of potato. Blighting of potato is of two types. One is early blight that is caused by Alternaria, and another is the late blight caused by Phytophthora. Now, both are blighting, but there is a basic fundamental difference between the two. That is yield. The yield loss in case of early blight is much less as compared to late blight. लेट ब्लाइट के वजह से ही ये जो आयरिश फैमिन हुआ था, द मेनली लेट ब्लाइट के वजह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है इसकी वजह से आयरिश फैमिन हुआ था. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट in comparison to the two type of blights, early blight is of lesser significance, but however, just like many other topic in plant pathology, we are going to read about early blight. और ये जितने भी पैथोलॉजी वाले टॉपिक्स हैं, कभी ना कभी सीएसआईआर में ये जो सीएसआईआर नेट होता है कि एक एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं प्लांट पैथोलॉजी के. So that is why it's very important. All the plant pathology topics are important. But from that, ये MSc और BSc दोनों syllabuses में है. So we are going to talk about early blight of potato in this video. And here मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ about the overview of Alternaria, इसकी जो distribution and life cycle, इसकी symptoms, predisposing conditions, rate of economic loss, and management and control. Welcome to Botany with Ayantika. I am Dr. Ayantika Das, and today we are going to read about Alternaria, which causes early blighting in potato as well as tomatoes. So, the first thing that comes in our mind while we are studying blight is what is the causative pathogen? That is Alternaria, Solani and Tomatophylla. अब इसकी होस्ट प्लांट क्या है? सारे solanaceous plants are its host, which means that crop plant like potato and tomato are host plant, as well as nightshades, which is just a weed, वो भी. So not only just crop plant but also the weeds are affected by Alternaria. ये Alternaria एक fungi है and it is an ascomycota, which means ये जो है it's a higher fungi. It is belonging to the class Dothidiomycetes, order Pleosporalis, family Pleosporaceae. One of the main feature of this is like they are deuteromycete. ड्यूटेरोमाइसिट क्या होती है? जिसकी टीलोमॉर्फ नहीं होती. टीलोमॉर्फ नॉट प्रेजेंट इन किसमें? ड्यूटेरोमाइसिट में, जो कि ऑल्टरनेरिया है. अब इसमें टीलोमॉर्फ मतलब सेक्सुअल स्टेज नहीं है, तो है क्या? है एनामॉर्फ, दैट इज द asexual stage. So this Alternaria solani में this is less virulent. I mean Tomatophylla is more virulent than the Alternaria solani. What do we mean by virulent? मतलब ये जो है बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादा बैडली इफेक्ट करता है प्लांट को. अब ये इफेक्ट कैसे करता है? इट अफेक्ट्स द प्लांट बाय नेक्रोसिस. व्हाट डू वी मीन बाय नेक्रोसिस? जो प्लांट्स की डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है, टिश्यू डेथ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस. और ये होता क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि फंजाई जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम छोड़ता रहता है. दैट एंजाइम has the property of degrading the cell wall. So it feeds on the dead, once it degrades the cell
सेल वॉल जैसे ही डिग्रेड होने लगते हैं, तो क्या होता है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट इज रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, तब जाके इजीली जो फंजाई है दैट कैन इजीली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट द न्यूट्रिएंट्स। तो एक तो आइदर तो द फंजाई हैव इट्स हाउस्टोरिया और वैसे सेल से एब्जॉर्ब कर लेता है, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स छोड़ता है जिससे कि सेल वॉल डिग्रेड होके जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली पास आउट हो सकता है सेल से। So these are the two processes by which nutrition is obtained, of which Alternaria is using the process of cell wall dissolution. Now let's come to another fungi, the Phytophthora. ये Phytophthora करता क्या है? Late blight, जो कि similar to the earlier blight but more severe because it has caused famine in several countries. Potato famine in Ireland. Now, इसकी geographical distribution क्या है? You have seen, we are seeing कि जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इवन पैसिफिक रीजन हैव दिस डिजीज। कहाँ पे ये नहीं है? वेल, ये नहीं है बहुत ही कोल्ड रीजन जैसे रशिया, कनाडा, ये सब रीजन में ये नहीं है। ओके, विच मीन्स दैट अर्ली ब्लाइट जो है ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में, आई मीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, एंड लेट ब्लाइट जो है ये कूलर टेम्परेचर में ज्यादा इजीली ग्रो करते हैं। देन वी हैव इट्स लाइफ साइकिल। वेल, ये जो फंजाई है ये जनरली क्या होता है विंटर में, ये आइदर तो इसकी माइसेलियम जो है या तो स्पोर्स जो है, तो आइदर द माइसेलियम और द स्पोर दे ओवर विंटर कहाँ पे? प्लांट रेसिड्यू में, ऑल्टरनेटिव होस्ट में, या सॉइल में। तो प्लांट रेसिड्यू में या सॉइल में जो ये ओवर विंटर करता है in the winter, gradually when the temperature rises, especially spring, तब जाके ये जो स्पोर है या जो हाइफा है that starts infecting this plant. So once it is infected, I mean जो इसकी जो स्पोर है वो जर्मिनेट करके एक होस्ट ढूंढ लेता है। तो आफ्टर द एंटायर आई मीन फर्स्ट द plant is infected, then the sign of infection is first seen in the leaves, then लीव्स में जैसे ही ज्यादा इन्फेक्शन हो गई है तो पेटियोल में ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, उससे फिर जाके स्टेम में हो जाता है, एंड इन दिस वे एंटायर प्लांट इज डैमेज्ड। अब जब प्लांट डैमेज हो गया है, पूरा इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया है, तब जाके ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है। सो आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड एंड मासिव ग्रोथ ऑफ माइसेलियम, दे स्टार्ट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। उसमें देखा जाता है ऐसे कोनिडिया। सो दिस इज वन कोनिडिया, दिस इज द नेक्स्ट कोनिडिया, एंड दिस इज द कोनिडियोफोर that I am drawing in red. So conidia of alternaria is very characteristic क्योंकि इसमें क्या है, we are saying that is a multicellular staged। तो ये conidia that is produced in the leaf is shed from the leaf, फिर जाके either to wind या water से ये transmitted हो जाता है nearby plants को, and second cycle जो है disease cycle ये शुरू हो जाता है।
And Alternaria is a polycyclic fungi, which means एक एक ही ईयर में ये मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली, एंड मल्टीपल टाइम्स ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो जैसे ही कोनिडिया ये शेड हुआ, किसी सुइटेबल बॉडी पे आया, तो it starts germinating and infecting new plants. So, not only the upper portion of the plant, but also the root and tuber are affected. So that was about the life cycle, जिसकी मैंने मेन पॉइंट्स इधर मैंने डाल के रखे हैं. Just go through the slide. And okay, one thing that I missed out is जो कोनिडिया है ये इन्फेक्ट करता कहाँ से? कोई भी स्मॉल वुंड्स है उधर से पेनिट्रेट इजीली हो जाता है, स्टोमाटा या लेंटिसल वाले पोर्शन जो है इससे भी हो जाता है, एंड देन डायरेक्ट पेनिट्रेशन. क्योंकि डायरेक्ट पेनिट्रेशन क्यों किया कर पाता है? क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट हैज गॉट सेल वॉल डिग्रेडिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, तो इसीलिए ये डायरेक्ट पेनिट्रेशन भी कर पाता है. नाउ what are the criteria? I mean, older leaves are first to be infected. क्यों? क्योंकि older leaves are close to the ground, closest to the ground. जब rain flash effect से, say for example the conidia is in the ground, और rain splash effect से ये क्या होता है? It gets transferred to a leaf. अब जो leaf सबसे नीचे है, तो that leaf will be affected first. The older leaves are first affected. इसके बाद आता है कि ये डिजीज की सीवियरिटी क्या है. वेल, डिजीज की जो सीवियरिटी है ये डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेन ऑफ ऑल्टरनेरिया सोलनी हैज इन्फेक्टेड, एंड ऑल्सो अपॉन द स्ट्रेन ऑफ द प्लांट. प्लांट अगर पैथोजन रेजिस्टेंट है तो we will see very negligible damage. But on the other hand, प्लांट अगर ससेप्टेबल है तो डैमेज काफी ज्यादा दिख सकता है. Then we have the symptoms. अब symptoms में we are seeing this target board type of lesions. Target board type of lesions, they have alternative light and dark area. तो ऐसे जो bullseye या target board type of lesion, it is characteristic of blight, Alternaria solani जो करता है. और ये क्या करता है, ऐसे लीफ स्पॉट के बाद क्या होता है, एंटायर लीफ यूजुअली टर्न्स येलो, जिसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं. लीफ ड्राइज अप एंड देन इट फॉल्स, डिफोलिएशन. कभी कभी बहुत ज्यादा हाई मॉइस्चर कंडीशन में ये क्या होता है, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है, और इसकी वजह से वी हैव मासिव लीफ लॉस. पत्ते पूरा झड़ जाते हैं प्लांट से, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है. आई मीन, लीव्स आर द प्लेसेस वेयर वी गेट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, पर अगर लीव्स ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ से? और नेचुरली यील्ड कम हो जाता है, वेदर इन टोमेटो और पोटैटो, दोनों में ही यील्ड कम हो जाता है. नॉट ओनली जस्ट लीफ, इसकी जो है ना, इसकी जो पेटियोल, that is also affected, the stem is also affected, the fruit, that is tomato, is affected, even the tuber, I mean root wala portion, that is also affected. So not only the plant's vigor is reduced but also the yield is reduced. टोमेटो में क्या क्या सिम्टम्स है? एज यूजुअल द ओल्डेस्ट लीफ फॉर द फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड. ऐसे कंसेंट्रिक रिंग टारगेट बोर्ड टाइप के होते हैं. द टारगेट बोर्ड जब बहुत सारे पूरा लीफ में ऐसा हो जाता है, तो ये जो लीफ है येलोइश हो जाते हैं, दैट इज क्लोरोटिक हो जाते हैं, एंड वी हैव डिफोलिएशन. आफ्टर द डिफोलिएशन लीफ क्या होता है, जो फ्रूट्स है वो दे आर मोर एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट, तो क्या हो जाती है, स्केल्डिंग हो जाती है ऑफ द फ्रूट्स.
ऊपर से फ्रॉम द स्टेम आई मीन लीफ पेटियोल एंड देन द स्टेम इज इफेक्टेड। और स्टेम में भी ऐसे लेशंस देखे जाते हैं, और स्टेम की लेशंस भी टारगेट बोर्ड टाइप के ही होते हैं। और जब यंग सीडलिंग्स में ये देखा जाता है तो ये लेशंस काफी डिप्रेशन आई मीन संकन लेशंस होते हैं। और ये जो स्टेम में ये रॉट क्रिएट करता है, तो एंटायर जो है ऐसे कॉलर टाइप के एंटायर जो है गर्डिंग टाइप कर देते हैं, एंटायर जो सरकमफेरेंस है उसमें ये रॉट देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉलर रॉट इन द स्टेम। जब फ्रूट अफेक्टेड होते हैं तब जनरली ये कहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है? कोई भी क्रैक से या ऊन से, ऊन्स स्पेशली बाय इंसेक्ट्स। तो ये वाले रीजन से फर्स्ट देखा जाता है, या पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्रूट, फ्रूट अगर है तो उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाले रीजन से भी इन्फेक्शन देखा जाता है। और ये जो फ्रूट है दैट टर्न्स वेरी लेदरी, फ्रूट्स यूजुअली इट टर्न्स लेदरी, और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो ब्लैक एक वेलवेटी वेलवेटी मास भी देखा जाता है, ब्लैक वेलवेटी मास ऑफ फंगल स्पोर्स देखा जाता है ऑन द टोमेटो। आफ्टर दैट वी कम टू पोटैटो। ओके, पोटैटो में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? वेल, वैसे ही प्रीमैच्योर डिफोलिएशन, पहले तो ओल्डर जो लीव्स है उनमें ऐसे स्पॉट्स आते हैं, और स्पॉट्स कहाँ से शुरू होता है? सेंटर ऑफ द लीफ से। वो पूरा लीफ में जब फैल जाता है तो लीफ क्लोरोटिक हो जाते हैं, और फिर डिफोलिएशन होता है। डिफोलिएशन एक बार हो गया तो स्टेम्स इन्फेक्टेड होते हैं। स्टेम में अनलाइक टोमेटो, टोमेटो में टारगेट बोर्ड वाला अपीयरेंस स्टेम में भी था, लेकिन पोटैटो में वो ऐसा नहीं होता है। पोटैटो में कोई क्लियर कॉन्टूर वाला जो है लेशंस नहीं होता, पर इसकी ट्यूबर इज बैडली अफेक्टेड, ऐसे लेशंस देखे जाते हैं। एंड दिस लेशंस अगर इसको हम काटे अंदर से तो कुछ ऐसा दिखता है, लाइक ड्राई कॉर्की लेदरी इन टेक्सचर, ब्राउन इन कलर, और पूरा जो प्लांट आई मीन ट्यूबर है ये बहुत ही सूख जाता है, श्रिवल हो जाता है। इसके वजह से काफी यील्ड लॉस होता है, नॉट ओनली इन जस्ट फील्ड बट ऑल्सो अंडर स्टोरेज कंडीशन। और बहुत ही अगर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर वाला कंडीशन है तो ये जो है ना ट्यूबर वाटर सोक भी लग सकते हैं। अब इसकी प्री डिस्पोजिशन कंडीशन क्या है और इसकी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये फर्स्ट देखते हैं। वेल, अगर जो मॉइस्चर कंडीशन ज्यादा है, जैसे लीव्स जो है बहुत ही लंबे समय से वेट रहती है, तो स्पोर जो है इजीली जर्मिनेट कर जाते हैं, फास्ट जर्मिनेट कर जाते हैं। पर स्पोर जर्मिनेशन से पहले एक स्टेज है स्पोर डिस्पर्सल। अब अगर ज्यादा विंडी है, या रेन है, या मिस्ट या फॉग या ड्यू मतलब वाटर वाले कंडीशन है, विंडी है, तो इस ऐसे में आइदर तो विंड या वाटर से ये स्पोर डिस्पर्सल हो जाते हैं। इसके बाद स्पोर जो है इजीली फैल गए तो जर्मिनेट हुआ इसके बाद। तो once the spore falls on a suitable substratum और टेम्परेचर भी सही है, तो 2 घंटे के जगह आधा घंटे में ही इजीली जर्मिनेट कर सकता है। एक बार जर्मिनेट हो गया तो फंगस जो है इजीली पेनिट्रेट करता है प्लांट में, फ्रॉम 3 to 12 आवर डिपेंडिंग के टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है। कम टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में 3 घंटे में ही ये क्या होगा, प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और फैल जाएगा, और लेशंस तैयार होने लगेंगे 2-3 डेज के अंदर। लेशंस होना मतलब रिप्रोडक्टिव बॉडी तैयार होना, क्योंकि लेशंस में से ही कोनिडिया जो हमने देखा था, कोनिडिया वो तैयार होते हैं। सो आफ्टर द लेशन इज फॉर्म्ड स्पोरुलेशन बिगिन, मतलब कोनिडिया फॉर्मेशन बिगिन। तो वो टेम्परेचर कौन सा है? पेनिट्रेशन तो 15 डिग्री में ही हो जाता है, पर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब स्पोरुलेशन स्टार्ट होता है। तो
जब स्पोरुलेशन हो गया तो प्लांट एंटायरली अफेक्टेड। अब अफेक्टेड प्लांट के वजह से इकोनॉमिक लॉस कैसे होता है? वेल, इसमें जो इकोनॉमिक लॉस ये उतना अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट जैसा नहीं रहता, पर कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेन ये 79% यील्ड लॉस भी करा सकता है। बट ये जो है ना अल्टरनेरिया सोलानी, ये जो डिजीज प्रोड्यूस करता है इन पोटैटो एंड टोमेटो, ये पैथोजन ऐसा है कि सेम टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय अदर पैथोजन आल्सो। तो इसीलिए हम इसकी इकोनॉमिक लॉस बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते। बट हाउएवर इसकी इकोनॉमिक लॉस तो लेट ब्लाइट से बहुत ही कम है। जब अंडर डिजीज इज नॉट अंडर कंट्रोल, देन वी नीड टू अप्लाई सम केमिकल फंजीसाइड। और ये सारे जो है फंजीसाइड के नेम है दैट वी कैन अप्लाई। पर अगर हम बिना फंजीसाइड के ही कर सकते हैं, मतलब अर्ली स्टेजेस में जब इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, तब क्या होता है? हाउ डू वी कंट्रोल द इन्फेक्शन और हाउ डू वी प्रिवेंट द इन्फेक्शन? बाय रिड्यूसिंग द वेटनेस। ओके, अगर सुबह सुबह ही जो है हमने इरिगेशन कर लिया, तो बाय द टाइम जो जैसे ही थोड़ा गर्मी हो जाता है, आई मीन अर्ली मॉर्निंग में हमने इरिगेशन किया, तो बाय द टाइम लेट मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, उस टाइम में आते आते प्लांट की जो लीफ सरफेस है या प्लांट में जो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉट वेट, दैट इज ड्राई, बिकॉज वेट जो है जितना भी वेटनेस वो सन के हीटिंग के वजह से खत्म हो गया है। सो अर्ली मॉर्निंग इरिगेशन इज सुइटेबल। और इरिगेशन भी कैसा हो? ड्रिप इरिगेशन हो, नॉट द ओवरलोड या स्प्रिंकलर मेथड। क्योंकि उसमें क्या होता है, पत्ते भीगते हैं एंड द स्टेम दे गेट वेट, बट वी नीड नॉट टू बाथ द प्लांट्स, वी नीड टू जस्ट प्रोवाइड अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि ड्रिप इरिगेशन से हो जाता है। अब इसके बाद आता है मल्चिंग। वेल, कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर रहा है और इसकी जो surrounding of the plant is provided with straw or other type of mulches, तो अगर आई मीन रेन ड्रॉप्स गिर भी रहा है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, इट इज नॉट स्प्लैशिंग इट, स्प्लैशिंग द स्पोर्स टू अदर प्लांट। ये वाला एंटायर सिनारियो होता ही नहीं है, क्योंकि मल्चिंग है। इसके अलावा भी अगर हम क्रॉप रोटेशन करें विद ए नॉन सोलानेशियस क्रॉप फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स क्यों? देखिए, नॉन सोलानेशियस मतलब ये जो ऑल्टरनेरिया है दैट इज अफेक्टिंग ऑल मेंबर्स ऑफ सोलानेसी। सो नॉन सोलानेशियस क्रॉप से क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा और एवरी 3 इयर्स पे करना पड़ेगा। एंड ये जो प्लांट है ये सोलानेसी को इफेक्ट करता है, तो कोई भी सोलानेसी की वीड भी अगर है तो इसको भी हमको वीड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी द ऑल्टरनेट होस्ट या वॉलंटियर क्रॉप दैट विल हार्बर दिस पैथोजन इवन इफ द क्रॉप प्लांट इज नॉट प्रेजेंट। अब आते हैं इसकी कल्चरल कंट्रोल पे। सो इसकी जो कल्चरल कंट्रोल और भी है, आई मीन वी हैव डिस्कस द कल्चरल कंट्रोल। अब क्या करना है? ये जो एग्रीकल्चरल डेब्रीज है या अदर वीड प्लांट्स है सोलानेशियस, वी शुड बी रिड्यूसिंग दिस वीडिंग आउट, बिकॉज इनोकुलम जो है इसको रिड्यूस करेंगे तो इनोकुलम कम हो जाएगा। अब हमको जब कल्टीवेट करनी है तो पैथोजन रेजिस्टेंट कल्टीवर यूज करना चाहिए, या तो जिस पैथोजन की मैच्यूरेशन टाइम लॉन्गर हो वो यूज कर सकते हैं, या कोई डिजीज फ्री प्लांट यूज कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग। देन जब ट्यूबर फुल्ली मैच्योर नहीं है तब हम उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन द ट्यूबर इज यंग, तब क्या होता है, इसकी चांसेस बढ़ जाती है कि वुंड हो जाए। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे हमको फुल्ली मैच्योर ट्यूबर ही हार्वेस्ट करना चाहिए। ओके, अब ये जो प्लांट्स होते हैं
इसको हमको स्ट्रेस फ्री कंडीशन में रखना चाहिए, विच मीन्स दैट न्यूट्रिशन लेवल प्रॉपर होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन, मॉडरेट लेवल ऑफ फॉस्फोरस एंड सॉरी पोटेशियम एंड लो लेवल ऑफ फॉस्फोरस होना चाहिए, ताकि न्यूट्रिशनल स्ट्रेस प्लांट में ना हो। और प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ द सॉइल होना चाहिए, और जो फील्ड है उसमें एयर फ्लो मेंटेन होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर इतना है और बहुत हाई ह्यूमिडिटी है, तो हमको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि प्लांट्स इन्फेक्टेड हो रहे कि नहीं। एंड फर्स्ट साइन ऑफ इन्फेक्शन वी शुड रिमूव द प्लांट दैट इज इन्फेक्टेड एंड डू fungicide spray for the rest of the crop plants. अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड लेट ब्लाइट। वेल, अर्ली ब्लाइट जो है दैट इज कॉज्ड बाय Alternaria solani and Tomatophylla, बट जो लेट ब्लाइट है दैट इज कॉज्ड बाय अनदर फंजाई, Phytophthora। अब ये जो है इट इज अ ड्यूटेरोमाइसिड माइसीट, और ये क्या है, एक ऊ माइसीट और वाटर मोल्ड। So these are two different type of fungi. This one is more potent. इसमें Irish famine कर दिया। Yield reduction is very high in late blight. So let's see. Early blight ये सारे सोलानेशी के प्लांट्स को अफेक्ट करता है। लेट ब्लाइट अफेक्ट्स ओनली द पोटैटो। इसमें लीफ में लेशंस होते हैं, ट्यूबर में भी लेशंस होते हैं, फ्रूट में भी। पर डिफरेंस ये है, इसकी जो लेशंस है दैट इज टारगेट बोर्ड शेप्ड, और इसकी जो आई मीन लेट ब्लाइट वाला जो लेशन है दैट इज नॉट ब्राउन कलर बट दैट इज ग्रीन कलर्ड। और इसकी लेशन हुई तो लेशन के सराउंडिंग में होता है एक येलोइश हैलो रीजन, बट नॉट द टारगेट बोर्ड। तो इसके बाद हम देखते हैं कि लीव्स के बाद पेटियोल्स आर अफेक्टेड एंड द स्टेम आर अफेक्टेड, जो कि इसमें भी होता है। और इसमें क्या होता है, ट्यूबर लाइक पोटैटो एंड द फ्रूट्स लाइक टोमेटो आर अफेक्टेड। इधर सिर्फ और सिर्फ ट्यूबर अफेक्टेड होता है, और दोनों ही जो है आई मीन ट्यूबर बिकम ड्राई, porky, leathery in texture and they shrivel up both in case of early and late blight. पर इसमें एक डिफरेंस है कि जो अर्ली ब्लाइट है उसकी ट्यूबर में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता, बट लेट ब्लाइट में जो ट्यूबर लेशन होता है इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से एंटायर जो ट्यूबर है वो बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा जो है ट्यूबर खराब हो जाता है। इसीलिए इल्ड रिडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मैंने फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस दैट इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पे भी एक वीडियो बनाया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है, और डिस्क्रिप्शन पे प्लांट पैथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट का भी है। एंड इफ यू जस्ट click to the link in the description you will get all the videos अबाउट प्लांट पैथोलॉजी। इसके अलावा भी मेरे जो चैनल में बहुत सारा बोटनी रिलेटेड, माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस है। यू कैन गो टू माय चैनल एंड वॉच दोज वीडियोस अंडर डिफरेंट प्लेलिस्ट्स। ओके, वीडियो कैसा लगा है प्लीज गिव मी द कमेंट्स फीडबैक। feedbacks you know they help us to improve more. So कैसा लगा, कुछ improvement चाहिए, so please let me know in the comment section. कुछ नया videos बनानी है, please let me know in the comment section. वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज सब्सक्रिप्शन आर फ्री, बट योर सब्सक्रिप्शन इट encourages me to make more such videos. Thank you for taking this precious time and watching my videos.